Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. I have recently started discussing with you all in a series of various videos on various topics that keep on coming up in a law student's mind, in a law officers, in an advocates, and everybody who is relating to law discipline's mind. Basically, people join the career of law and there are various options that are available after law, but ऐसे कुछ questions होते हैं जो lawyers के mind में हमेशा होते हैं एंड ऑल्सो कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं जो काफ़ी रिसेंट होते हैं लॉ फील्ड में. सो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दोज एरियाज. अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक्स हैं जिन पर आपको डाउट है या आप चाहते हैं कि उस पर मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, सो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. And we all legal faculty at iExamB will certainly try to help you all and guide you in the best manner possible. Also, for all government exam preparations, you can refer to iExamB's website and check out all the details that are available. You can also write to us at hello@iexamb.com and आप इस नंबर पर directly call करके भी आपकी queries and government exam preparation, law officer examination preparations के courses related भी details find out कर सकते हैं. And of course, don't forget to subscribe to Legal Bee and stay updated with all such kind of beneficial content available at iExamB. So let us start. आज की इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक पिक किया है that is relating to a law school or a law college setup, and that is relating to the very famous competitions that are taking place in law schools and colleges, and that is relating to moot court and mock trial. मूट कोर्ट और ये मॉक ट्रायल, जो ये दो नाम हैं आप लोगों ने कई बार सुने होंगे आपके कॉलेजेस में एंड स्कूल्स में, and you must have got the question. And if students who are watching this video, those who are in their colleges and law schools, I would definitely suggest you that do go for these competitions. These are an excellent opportunity for you people. ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन दो कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू पे लाइट ऑन जो एक क्वेश्चन होता है, that is put light on that is what is the difference between both of them. मूट कोर्ट्स जनरली सबको पता होता है, मॉक ट्रायल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स. सो लेट अस हैव अ ग्लांस ऑन इट. पहले समझ लेते हैं व्हाई मूट कोर्ट्स एंड मॉक ट्रायल्स. व्हाई? First, always understand why we are reading about something or why we are getting into this video for this particular thing, and then only automatically we understand what it is. हमेशा why से शुरुआत करें. Why we are studying this? Why we are reading this? Moot courts and mock trials, I would say, is the most beneficial exercise that is taking place in a law college or a law school. It is developing the inevitable skills for a lawyer, something which helps him to develop his advocacy skills. Which are those skills? Speaking, of course, listening, reading, research, writing, which is actually developing his drafting skill, and the skill of arguments, that is arguing. This is going to turn you into a successful lawyer, and if you want to develop your career not even in litigation but also in other fields, that can be a law officer, that can be a drafting lawyer, that can be any person of the law discipline, ultimately you are an advocate and you are graduating as an advocate. तो जब भी आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी देते हो, ऑल दीज स्किल्स विल ओवरऑल हेल्प यू अ लॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी सीवी में काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट रहेगा कि आपने मूट कोर्ट्स एंड मॉक ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया है. अगर आप लिटिगेशन में जाते हो तो इट इज़ द बेस्ट थिंग. अगर आप दूसरे फील्ड्स में भी जाते हो तो भी ये सारे स्किल्स आप में होने चाहिए, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली एन एडवोकेट एंड ऑल दीज स्किल्स शुड बी देयर इन यू. अगर सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, काफ़ी लोग हैं जो हमारे चैनल पर लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफिसर को लाइफ में कभी ड्राफ्टिंग नहीं करनी होती है या कभी भी आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है, रिटन आर्ग्यूमेंट्स के अक्रॉस नहीं आना होता है. व्हेन यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ फॉर योर पर्टिकुलर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन में हो, तो आपको आपके अंदर एक लॉयर की स्किल्स इनबिल्ट होनी चाहिए. एंड ये अज्यूम किया जाता है कि आपने लॉ स्कूल या लॉ कॉलेज से पढ़ाई की है तो ये सारे स्किल्स आप में इनबिल्ट
है, इसके लिए आपको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। एंड अगर ये स्किल्स आपके अंदर है तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है. So this is the reason that these competitions are a very good exercise for you people, and you should definitely go for them when you are in your UG, that is in your graduation. What are mood courts? Let us understand that. ये इमेज काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड मूड कोर्ट एक आर्टिफिशियल कोर्ट सेटिंग होती है जिसमें एकदम रियल कोर्ट जैसी सेटिंग की जाती है. जजेस या फिर टीचर्स या लॉयर्स को जज का रोल प्ले करना होता है. दे आर ट्राइंग टू जज द स्टूडेंट्स एंड गिव देम मार्क्स एंड फीडबैक्स एट द सेम टाइम. दिस इज समथिंग विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अ मूड कोर्ट और अ मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन, कि आपको फीडबैक्स मिलते हैं एंड इससे आपको काफ़ी सारी लर्निंग होती है. दिस इज समथिंग विच यू आर डूइंग प्रैक्टिकली. ये आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है. तो जब आप कोर्ट में जाते हो रियल में तो आपके काफ़ी सारे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं. आप आपका कंफर्ट जोन, आपका स्टेज फियर सब कुछ ऑलरेडी छोड़ चुके होते हो जब आपने ये मूड कोर्स ऑलरेडी किए हुए होते हैं. आप क्वेरीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो बिकॉज द जज ट्राइज टू आस्क यू रादर थ्रो क्वेश्चंस ऑन यू. तो ये सारे क्वेश्चंस का एक्सपोजर आपको मिल जाता है, वो भी एक आर्टिफिशियल कोर्ट सेटअप में जो बिल्कुल एक कोर्ट की तरह होता है. Even the behavior, the manner, the court mannerisms, each and everything you can learn itself by a simple mood court exercise. मूड कोर्ट में आपको एक अपीलेट कोर्ट का एक्सपीरियंस दिया जाता है. दैट इज अपीलेट कोर्ट एंड नॉट द बेसिक ट्रायल कोर्ट बट एन अपीलेट कोर्ट. तो यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रिबटल्स होते हैं, पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, जज उन्हें क्वेश्चन करता है एंड उनके कुछ रिबटल क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड में होता है. इवन यू कैन लर्न टाइम मैनेजमेंट वेरी वेल बाय दीज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स. आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिक्टली लॉ पॉइंट्स पे होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन लर्न वेरी वेल, क्योंकि जब आप रियल में भी कोर्ट में अपना केस आर्ग्यू करोगे तो आपको यू हैव टू स्टिक टू द लॉ पॉइंट्स. यू कैन नॉट आर्ग्यू ऑन फैक्ट्स इन एन अपीलेट कोर्ट. तो ये सारी लर्निंग्स आपको एक साथ इन्हीं कॉम्पिटिशन से आ जाती है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल एक्सरसाइज. एंड there is no any kind of witness examination. Be sure of that. mood court में witness examination नहीं होता है, evidence recording नहीं होता है, क्योंकि ये actual trial नहीं होता है, ये appellate court होता है. तो इसमें आपको काफ़ी सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाती है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है. एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका स्टेज फियर, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जो है आपकी ऑलरेडी यू आर वर्किंग ऑन इट एक मूड कोर्ट एक्सरसाइज में. एंड रादर यू आर गेटिंग अ गुड टीम विद यू. यू हैव अ रिसर्चर एंड देयर आर 2 स्पीकर्स. जनरली 3 लोगों की टीम होती है. इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो. रिसर्चर कुछ बोलता नहीं है बट रिसर्चर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ही इज़ रिसर्चिंग एंड researching, and research is something which is a very very strong tool in the hands of a lawyer, and that is going to make you more confident in your law field. What is a mock trial? आपको इस इमेज में भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मॉक ट्रायल में क्या होता है. मॉक देख रहे हो कि किस तरीके का सेटअप है. व्हाट आर द चेंजेस यू कैन मेक आउट. इट इज़ एक्चुअली अ लोअर कोर्ट सेटअप. लोअर कोर्ट में ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं. आप सबको आई थिंक पता होगा कि ट्रायल का मतलब क्या होता है. हम उस पर भी एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया ले लेंगे. सो एक्चुअल ट्रायल जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है उसी तरीके से मॉक ट्रायल भी होता है. एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जाता है. इसमें स्टूडेंट्स विटनेस भी बनते हैं एंड उन्हीं विटनेसेस को प्रिपेयर करना होता है. उन स्टूडेंट्स की एक जनरली मिनिमम 4 लोगों की टीम होती है एंड दोज विटनेसेस नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स. दे हैव टू हेल्प देम विद द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस. दे नीड टू डू चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन. एक्चुअल ट्रायल कंडक्ट किया जाता है. तो जब उन्हें ये सारी क्लैरिटी कॉलेज में ही आ जाती है दैट हाउ दे आर गोइंग टू conduct an actual trial in the court, then it will be very easy for the students to determine whether they can do this or not and whether they want to go into litigation or not. So this is something which is a very very good competition, and the most important step in a mock trial is the trial itself. ट्रायल का मतलब क्या है?
एविडेंस लिया जाता है, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सब आप आपके प्रोसीजरल लॉज में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो ये सब आपको एक्चुअली कंडक्ट करना होता है एक मॉक ट्रायल में, एंड पूरा सेटअप उसी तरीके से होता है। विटनेसेस का आपको प्रिपेयर करना होता है बिफोर यू गो इन टू द competition or in the court really. And also one more thing, many people think कि mock trial में draft की ज़रूरत नहीं है, but ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मॉक ट्रायल का, जो एक ओपनिंग स्टेटमेंट देना होता है दोनों भी साइड्स के स्पीकर्स को। विटनेस एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस, तो उसके लिए आपके पास एक रिटन ड्राफ्ट होना भी ज़रूरी है। जैसे मूड कोर्स में सिर्फ विटनेस एंड एग्जामिनेशन वाला पार्ट एलिमिनेट किया गया है, इट इज़ नॉट अ ट्रायल, द क्वेरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉ पॉइंट्स पर आर्ग्यू किया जाता है। वैसे ही मॉक ट्रायल में फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लॉ। लॉ भी होता है, बट ऑफ कोर्स फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ट्रायल, एंड ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड विटनेस एग्जामिनेशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ मॉक ट्रायल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉक ट्रायल एंड मूड कोर्ट में क्या डिफरेंस है। इट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, एंड दिस इज़ what are these two competitions, and they hold a lot of importance. If you participate in such kind of competitions in your law college and law school, you're making yourself very much ready for the actual court exposure in your college itself. So this is going to give you a real time experience of courts. This is going to build up many skills in you, as I already told you. आप इस वीडियो को बैक करके भी चेक कर सकते हो कौन से स्किल्स हैं, एंड इवन इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू बिल्ड अ लॉयर इन यू। सो stay updated with iExamB for such kind of videos and content. We are the expert faculty at iExamB to help you and guide you. You can check out all our details at our website as well. You can check out various exam preparation courses if you're aspiring to give any of the legal examinations. And also don't forget to subscribe and prepare 50% faster with iExamB. Thank you.